Good morning, I am Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you Geography for Class 7, Chapter 1st, Environment Part 1. This chapter starts by conversation. One student whose name was Rabi, he went to his school after long summer vacation, and Ravi suddenly saw one playground next to his school. That the playground was dug up. People people said that there would be one big building constructed and with many flats. Ravi became very sad. He thought that there would be no marigolds, green grass, butterflies for forever. And in assembly, when he attended assembly, the principal told that how changing our environmental nowadays, and our environment has been changing very fast. Then Ravi went to school. Ravi went to his class. He suddenly asked his teachers, "Sir, what is environment?" जब रवि के दिमाग में ये बात आई तो अपने अध्यापक से उसने यह प्रश्न अचानक पूछा, क्योंकि सोच रहा था कि आखिर हमारे ये सब हो क्या रहा है, तो इन्वायरमेंट है क्या. द टीचर गेव द आंसर दैट व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, जो भी आप अपने चारों तरफ देख रहे हो वही इन्वायरमेंट है, वही पर्यावरण है. Then Ravi indicates all the things like school buildings, tables, chair in the class, even that open field, road, garbage, my friend, all are environment. Teacher replied, absolutely, all are environment, all are part of the environment. Okay, the teacher explained all the things. Some things created by nature like mountain, river, trees, and others are made by people like roads, cars, books. वो एक्सप्लेन करके समझाता है कि जो हमारे चारों तरफ हैं कुछ नेचुरल हैं और कुछ मैन मेड हैं, मनुष्यों के द्वारा बनाई गई चीज़ें. तो फ्रॉम अबव कन्वर्सेशन, इन्वायरमेंट, जो टीचर्स स्टूडेंट्स में जो कन्वर्सेशन हो रहा है, तो इसमें टीचर फिर उन लोगों को बताता है कि आप एक लिस्ट बनाओ और यह पता करो कि कौन कौन सी चीज़ों को मानो मेड है और विच थिंग्स आर नेचर बाय नेचुरल, मेड आर बाय नेचर, जिसे मनुष्यों ने नहीं बनाया है. देन every students of the class went to collect the things, write the things, made the list and show the teachers. तो ये जो बातें हुई हैं कि टीचर के बारे में, या टीचर ने बताया इन्वायरमेंट क्या है, स्टूडेंट्स ने अपनी जिज्ञासा को टीचर के सामने रखा है, तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आखिर ये है क्या, इन्वायरमेंट है क्या. तो बाय दिस कन्वर्सेशन we can understand that environment is a combination of natural and human made phenomena, while natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. Human environment reveal the activities, creations, interactions among human beings. तो दो तरह की चीजें हैं, एबायोटिक, बायोटिक. बायोटिक से सेंस है लिविंग थिंग्स. जो नेचुरल चीजों को भी दो पार्ट में बांटा जा रहा है, बायोटिक एंड अबायोटिक.
तो बायोटिक, बायो से सेंस है जो लिविंग थिंग्स में एनिमल्स, प्लांट्स एट्सेट्रा, नॉन लिविंग थिंग्स लैंड्स, माउंटेन्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये जो इन्वायरमेंट है, यह एक्टिविटीज़, क्रिएशन, इंटरेक्शन, सारी चीज़ें ह्यूमन बींग्स के आपस में होता है। और ये जो चीज़ें हैं इन्वायरमेंट के, जो मानव मेड एंड नेचुरल मेड चीज़ें, यह एक पार्ट है इन्वायरमेंट का। ओके, नेक्स्ट, नेचुरल इन्वायरमेंट। व्हाट इज द नेचुरल इन्वायरमेंट? तो वी कैन understand about the things like land, water, air, plants, animal comprises the natural environment. In previous class you already studies about the sphere like lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. We also understand about this fact in this topic. And what is the lithosphere? We should understand. तो लिथोस्फीयर क्या है? तो लिथोस्फीयर हम बोलेंगे इट इज द सॉलिड क्रस्ट और हॉट टॉप लेयर ऑफ द अर्थ एंड इट इज एन इरेगुलर सरफेस with various landforms such as mountain, plateau, plains, valley, etc. It is the domain that provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture, human settlement and a source of mineral wealth. तो जो भी जमीन पे जो सॉइल है, यह एक इसे हम लिथोस्फीयर का पार्ट बोलेंगे, जहाँ मनुष्य रहता है, अपने लिए खेती करता है। जो जमीन का ऊपरी सतह, जो कठोर टॉप लेयर है, उसे ही हम लिथोस्फीयर कहते हैं। इसमें मनुष्य अपना घर बनाता है, इसी पे पहाड़ होते हैं, इसी पे जंगल होते हैं। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड अबाउट द लिथोस्फीयर। नेक्स्ट, हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर इट इंडिकेट्स विद द नेम्स, हाइड्रो मीन्स जो जल से रिलेटेड है, जो पानी से रिलेटेड है, एंड हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स, सीज, ओशियन एक्सेट्रा। तो जो पानी से रिलेटेड है वह हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आता है। उसमें नदियाँ, झील, समुद्र, ये सारी चीज़ें हम हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत इसको हम लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर। व्हाट इज द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर की चर्चा हमेशा होती है और एटमॉस्फेयर भी हमें समझ लेना है। व्हाट इज द एटमॉस्फेयर? तो एटमॉस्फेयर इज द थीन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स अस, जो हमारे चारों तरफ थीन लेयर है। एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। चूँकि अर्थ में ग्रेविटेशनल होता है, सभी चीज़ों को अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो खींचती है, यह तो एटमॉस्फेयर को भी करती है। एटमॉस्फेयर को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और इससे लाभ क्या होता है? तो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज, जो किरणें आती हैं, या स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, उससे भी हमारी रक्षा करती है। तो ये जो ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ का है, तो हार्मफुल रेज से भी प्रोटेक्ट करना, या स्कॉर्चिंग हीट जो सन से हमें मिल रहा है, जो जलाने वाली, मनुष्यों की चमड़ियों को जलाने वाली या झुलसा देने वाले जो किरणें हैं, उससे भी रक्षा हमें यह करती है। इट कॉन्सिस्ट ऑन नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट, वाटर, वेपर, प्लांट। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको डस्ट से, वाटर से बने हुए एक आवरण होते हैं इसके। ओके, नेक्स्ट, बायोस्फीयर। व्हाट इज द बायोस्फीयर? तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर आर द लिविंग वर्ल्ड। जो प्लांट और एनिमल मिलकर जो बनाते हैं, जिसे हम लिविंग वर्ल्ड भी कहते हैं, उसे ही हम बायोस्फीयर कहेंगे। ओके, इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ where land, water and air interact with each other to support the life। चूँकि लोगों का जीवन कैसे चले, सरवाइव लोग कैसे करें, तो
इसके लिए एक दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है, प्लांट पे, एनिमल पे। जो पौधे हैं वह हमें क्या देते हैं, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम क्या करते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो ये एब्जॉर्ब करते हैं, तो एक दूसरे के पूरक भी हैं, कंप्लीमेंट भी हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर, ये सारी चीज़ें जो लैंड, वाटर और एयर है क्या करती है, इंटरेक्ट करती है। इंटरेक्ट करने के लिए यह लाइफ को सपोर्ट करती है। Okay, I think you understand about the things, and now I am going to complete this video, and in next video I would like to discuss about the what is the ecosystem. अब ecosystem पे हम लोग डिस्कस करेंगे, and you should listen carefully this video. I believe you will able to understand everything. तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एक मोटे तौर पे हम समझ लें कि इसको हमने आज जो पढ़ा है इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट के बाद हमने स्फीयर के बारे में पढ़ा। ओके, थैंक यू।